Assalamu alaikum. My name is Minahil Manzoor and I am serving Kundan organization as a joint secretary. First of all, I warmly welcome all of you in this session and hope so this session gives you a lot of information and knowledge regarding emotional intelligence and your personal communication skills. The basic purpose to conduct this online session is to enhance the communication skills of our youth. And I am really thankful to our Kundan organization which started these great sessions for our youth to improve our skills. So that's why we can serve our country more accurately. The basic motto of our Kundan organization is faith, opportunity, and dignity. Now, I want to introduce our honorable chief guest, Sir Wasim, a very great personality. He is demonstrator in Superior University, Lahore. He is also moderator, developer, enhanced communicational skills. Okay, sir, I have my first question for you. What is basically emotional intelligence and what its importance in our life? First of all, thank you very much for calling me upon. Guys, basically, it's just in a way, it's just in a phenomena we developed it. Like the way we are talk to somebody, the way we actually deal to the things. I just want to ask my audience because if is more likely, more precise, and is develop the understanding when if we have it in a face to face, but due to that covid situation we cannot be able to do it. But in future I wish good luck to Kundan, they can do physically, hopefully, if the covid situation gets sorted. I just want to know to my audience, if you guys can what I say is want to talk about it, what you think about what is emotions, and why they are really important, and what you think basically of the emotions. Intelligence we talk about later. Forget about intelligence at the moment. It's just about the emotions, like what you think of the emotion. Can anyone of you? Hello. जी, जी सर। Yes. बेसिकली आप थोड़ा-सा उर्दू में अगर आप बात करें तो उर्दू मीडियम इनको सही समझ आ जाएगा। बेसिकली मैं सर ये समझा हूँ आपकी बात। इमोशंस ये होती हैं कि कोई भी थॉट्स हमारे ज़हन में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं करते और उसको हम सही तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। Yes, emotions. Look, अगर हम अपने it starts from really beginning, a really beginning, from our childhood. Ubaid, I try to put myself into Urdu. That's more convenient if you think. यस सर। Emotion, emotions जो है, बिल्कुल अगर बिल्कुल बेसिक्स पे जाएं, अगर हमारा बड़ा भाई है, if he's asked for a glass of water, and if we are not in a right frame of mind, if हम अपने उस frame of mind के साथ, mindset के साथ नहीं बैठे हुए, so we get really angry, in sense of not angry like annoyed, to get him a glass of water. But if something is good with us, like we are in a good mood, and what actually happened, we happily go and fetch a glass of water for the brother, without regardlessly thinking about anything other than facilitating the brother. Basically, emotions are recognizing, when you recognize the person you are talking to. Yes, it's more like feelings, but you only can understand those feelings, and when somebody is really have concerns about you, uh, you only can show the feelings. But it's more likely that you recognize those things, and to recognize the feelings, the understanding, you need to recognize and understand. That has in a four quadrant, basically, the emotional intelligence. Understanding yourself, like first of all we need to understand ourselves, the things we liked it and the things we don't like it. And then we need, once we realize the things we do liked it, so why we like them. Because maybe I like ice cream in the winter. Why I like them, I have no idea. Why?
cause I don't know why I liked it. First of all, you need to understand, you need to realize, you need to recognize why you like an ice cream in a cold weather. With everybody having an ice cream and having a sore throat, but you, regardlessly thinking about the sore throat, you getting involved having the ice cream in a cold weather. Cause somewhere, maybe if I had that kind of a thing, maybe that thing is really one of my cup of tea. Maybe I don't like the weather. I like the winter over summer. That could be the reason. And that could be the reason as well, like the cold is better. Now the thing is, first of all, we need to understand ourselves. That's very important at the very beginning. If you don't understand yourself, it's very Excuse hard me, for sir. you to manage it. Yes. Sir, please move in Yes, English, yes, sir. Urdu. We are not understanding. Urdu काइंडली is आपने more. जो भी कहना है ना आप टेक्स्ट कर दें, तो आप अपना माइक अनम्यूट ना कीजिएगा दोबारा। थैंक यू। आप टेक्स्ट कर दें, मैं सर को रीड करके बता दूंगी। सर आप कंटिन्यू करें। हेलो। Yes, sir. I try my best now. Translate myself into Urdu. देखो, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है. That's what is called recognizing yourself. That's the first quadrant of understanding the emotion. Emotions जो है उनको understand करने के लिए कि हमें कोई चीज़ अच्छी क्यों लगती है और हमें कोई चीज़ बुरी क्यों लगती है. अगर अच्छी लगती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, और अगर बुरी लगती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वजह, कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से हम खुश या उदास होते हैं. उसके बाद जो सेकंड है वो है मैनेजिंग योरसेल्फ. लाइक अगर मुझे पता चल गया है कि मुझे अगर खुशी मिलती है तो वो उसकी रीज़न, मुझे अगर गुस्सा आता है तो उसकी रीज़न क्या है. जैसे कि मुझे अगर पता है कि एक लिमिट के बाद आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मीन टू से आई कैन नॉट बेयर समवन्स टॉकिंग अबाउट इट. मतलब कि अगर मैं दोस्तों में बैठा हूँ और एक लिमिट के बाद मैं जो है अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप किसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं तो दैट्स गुड, दैट्स ह्यूमरस. बट अगर जैसे ही आपको फील होता है कि आप किसी पर इनटू से किसी के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं तो दैट्स टॉन्टिंग, दैट हर्ट्स अ लॉट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग इन अ ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी पीपल. अब आपको पता है कि आपको जो है किस लिमिट के बाद गुस्सा आता है, तो जैसे ही आप उस लिमिट पे पहुंचे या आप कन्वर्सेशन चेंज कर दें. कन्वर्सेशन चेंज नहीं कर सकते तो आप उस ग्रुप से एक्सक्यूज करके जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोग जो है हमें कभी भी इस चीज़ की, अगर प्रोफेशनल वर्क पे है, प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर है, तो कभी भी हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है कि मतलब हम बहुत ज़्यादा, अगर हमने कोई काम किया है, बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट पुट किया है, जैसे हम बहुत ज़्यादा, अगर बीइंग एन स्टूडेंट अगर सोचा जाए, हम पढ़ रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा अपना मेहनत के साथ हमने काम किया, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ग्रेड उस तरह से नहीं आए, लेकिन आपने मेहनत की है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया. कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी रीजंस जो हैं वो उस चीज़ को हिट करती हैं जिससे वो ग्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. लेकिन सिंपल, it does, regardlessly thinking your parents thinking about what grades you got it, they was like, you put your effort 100%, whatever is came we accepted it and we are very happy. Appreciation, that's what it's called. We all need a little appreciation, a little push to understand ourselves. तो क्या होता है कि उसके उसके रिबेट के अंदर, whenever we had a problem, सफदर आप क्या कहना चाह रहे हैं?
वालेकुम Assalamu सलाम। alaikum, sir. Sir, actually, I want to add something that regarding साहब बहुत अच्छे ही हमें समझा रहे थे. So actually, emotions are the inner feelings of a human body or our sense, and it has sometimes darker aspects and sometimes the brighter aspects. And having with in addition to this, having a lot of lots of expectations. बहुत सी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी प्लेजेंट होती हैं, कभी अनप्लेजेंट होती हैं, और कभी वो एक कम्युनिटी से इमोशंस जो है पॉजिटिविटी शो करते हैं, कभी वेदर से पॉजिटिविटी शो करते हैं, कभी अच्छी गैदरिंग से और अच्छी जो है सोसाइटी, अच्छे एनवायरनमेंट को डीवीडी होती थी, पहले जमाने में सीडी होती थी, जो हम उसमें कोई सीडी ऐसी चीज जो उसको उसकी हार्ड डिस्क को, हार्ड ड्राइव को अगर एक्सेप्ट ना करे तो वो फौरी रिजेक्ट कर देता था. ऐसे ही द कॉमन सेइंग इज दैट एन एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस पे होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, ये कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वेदर से, हमारी जो इनर सिचुएशन है उसको रिलेट करती हैं. बस आई वांटेड टू ऐड दिस, सर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, सर. ओके, थैंक यू सो मच सर. अब आप नेक्स्ट स्टार्ट कर दें. सफदर, यू एक्सप्लेन इट अ लॉट. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन आपके इनर के ऊपर देखे, आपने आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग वो जितना हमें समुंदर की सरफेस से ऊपर नजर आ रहा होता है, उससे 4 गुना ज्यादा दैट्स द डीपेस्ट. और वो कितना वाइड है, उसकी बेस कहाँ तक है, उसकी कितने माइल्स तक वो जा रहा है, यू नेवर नो. ये हमारी इनर एबिलिटी है. अगर हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर लें, नो वन कैन बीट अस. प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे इमोशंस, हमारे अंडरस्टैंडिंग्स हमारे उस तरीके से नहीं रहते, दबे रहते हैं, तो हम वेलकैनो की तरह फट जाते हैं. और जब वेलकैनो फटता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस चीज को बहा के लेके जा रहा है, वो कौन ह्यूमन है, वो अर्थ है, वो फॉरेस्ट है, वो नहीं देखता, वो समंदर है, हवा है. तो वो हर चीज को जो है अपने आप जैसा कर लेता है. हर चीज आपको स्याह फाम नजर आती है. उसकी रीजन ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते अपने आप को, जिसकी वजह से हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारे एट्रीब्यूट्स में चेंज आता है, सोसाइटी पे हम ब्लेम करते हैं, हमारे नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, हमारी जो कल्चरल लर्निंग है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, हमारी पर्सनल इनहेबिटेड जो लर्निंग है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं. और सम टाइम वो इस पीक तक चला जाता है कि हमें जो नहीं करना चाहता है हम वो भी अटेम्प्ट करते हैं, और हम अपने पेरेंट्स को जो है वी लिटरली से कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो ये नहीं किया, अगर वो इस तरह से करते तो आज मैं किसी और मुकाम पे होता. दैट्स द नेगेटिविटी हिट अस, ओनली व्हेन यू हार्डली मैनेज योरसेल्फ. देखिए, अंडरस्टैंड इंसान कर लेता है कि मैं आफ्टर गेटिंग द राइट अंडरस्टैंड इंसान कर लेता है कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, और हो क्या नहीं रहा. एक्सक्यूज मी. प्रॉब्लम उसकी आती है, अंडरस्टैंड तो कर लिया, मतलब उसे समझ लिया है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पा रहा. वो मैनेजिंग इज क्या, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं. आपका काम किसी ने अपने नाम से सुपीरियर है, मतलब मीन टू से आपका बॉस है, उसने अपने नाम से आगे शो कर दिया, डजंट मैटर. लेकिन एक टाइम आता है कि आपका जो विल्केनो बर्दाश्त का है वो उसको बियर नहीं कर पाता और आप मेहनत छोड़ देते हैं.
और वो टाइम होता है जहां पे एक्चुअली आपको इनाम मिलने वाला होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द वन पर्सन. We being in a Muslim have a very strong belief that Allah Almighty never ever had a I personally don't have that disbelief कि अल्लाह जो है वो जो इंसाफ करता है वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता. हाँ, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ चीजें कुछ लोगों को वक्त से पहले मिल जाती हैं, कुछ चीजें कुछ लोगों को वक्त के बाद मिलती हैं. उसके लिए अब कुछ लोगों की लक बाय चांस इस तरह से बनी होती है कि वो उनको वक्त से पहले विदाउट हसल मिल जाती हैं, और लेकिन अगर वो एक ट्रैक पे नहीं रहते तो वो खो भी देते हैं. एंड द मीन वाइल द पीपल एक्चुअली डूइंग इट विद अ हार्ड वर्क, तो जब उनको वो फल जो है वो मिलता है तो दे इजीली ग्रैप्स इट. मोशन को पहले अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद उनको मैनेज करें, और उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट जो इस वक्त की पोजीशन रखता है हमारे इस करंट सिनेरियोस के अंदर, वो है सोशल रिलेशंस. यू नो, आपके सोशलाइजिंग जो सोशल रिलेशन है वो उसमें आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर्स सिबलिंग्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके दोस्त अहबाब के सर्कल्स हैं, क्लोज वाले, दूर वाले, लिमिटेशंस हैं, उनको जो है वो जानना, और फिर उन रिलेशंस को जानने के बाद मैनेज करना. अगर हम इन 4 क्वाड्रेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड करके मैनेज कर लें तो जो हमारा ब्रेन है, बिलीव मी, ये इतना बैलेंस चलता है कि हमें चीजों को वक्त से पहले अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देता है. यू नो व्हाट आई मीन? मतलब कि अगर आप बात करें इमोशन अंडरस्टैंडिंग की, तो वो बेसिकली रिकग्नाइज योर इमोशंस है. जी मिनाहिल? यस सर, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी. अभी हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला आपसे कि सबसे पहले हमें जो है हेलो. वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड देन जो है वो उसके बाद मैनेज करके हम इसको प्रॉपरली तौर पे जो है वो इसका रिएक्ट दे सकते हैं. थैंक यू सर. मेरा आपसे हेलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes. एम आई ऑडिबल? जी. तो सर मैं यही कह रही थी कि आपने हमें बहुत अच्छा ये पॉइंट दिया है यस यस यू आर. कि हमें सबसे पहले जो है वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली, ताकि जो है वो मतलब सब जो फोर्थ वे जो आपने हमें बताए हैं उसको हम इजीली मैनेज कर सकेंगे. एंड नेक्स्ट सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैनेज एंड रिकॉग्नाइज आवर इमोशंस, ठीक है, कि मतलब अब आपने ये कहा कि हम उसको जो है वो मैनेज करें, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं अपने इमोशंस को, और हम किस तरह से उनको जान सकते हैं, because as all we know that in personal and professional also we face these type of circumstances like anger and disappointment, so how we can manage it? जी सर. देखिए, सबसे पहला जो क्रूशल पार्ट है ना वो है अंडरस्टैंडिंग का. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया ना, तो सेकंड फेज में रिकग्निशन आती है आपकी. जो आपका क्वेश्चन है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया, Yes उसी sir. की तरफ हम जो है वो मूव करें. इससे पहले मैं इस तरफ जाऊं, हमारा एक बैलेंस है. लाइफ ऑलवेज डिमांड बैलेंस. कुछ भी चीज है, जैसे अभी सफदर साहब ने भी कहा कि मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हार्म, यू नो, तो बैलेंस चाहती है लाइफ. वो आपकी कोई सी भी लाइफ है, कॉर्पोरेट है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, वट एवर द लाइफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इनफैक्ट द सोशल लाइफ. यूजली आई सेड इट कि आपको सोशली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक इंसान है वो उतना टाइम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं गुजारता, अपने स्टूडेंट लाइफ उसमें नहीं, सर्कमस्टांसेस में नहीं, क्लास में नहीं गुजारता, उतना वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं गुजारता जितना वो सोशल गुजारता है. अगर आप सोशली स्ट्रांग है, मतलब अब क्या है कि आपको पता चल गया है कि अगर सामने वाले को आपकी बात हर्ट लगी की है तो आप उसके एक्सप्रेशन से वो चीज जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है. वो बैलेंस कैसे आएगा? वो बैलेंस एक सिंपल सी चीज है. जो हमारा दिल है वो दिमाग का काम करता है, और जो दिमाग है वो करता है दिल का काम. उल्टा है हमारा सिस्टम. हम सिस्टम में बैलेंस नहीं रख पा रहे. अब क्या होता है कि हम प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम उसी किसी फेज में होते हैं, तो हम अपने दिमाग से ही फैसला लेते हैं. आई टेल यू गाइस वन थिंग, आप दिमाग से फैसला लेंगे तो उसमें एहसास नहीं होगा, और अगर आप दिल से फैसला लेंगे तो उसमें अकल नहीं होगी.
तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जब आप दोनों से फैसला लेंगे तो उस फैसला जो आपकी डिसीजन मेकिंग को एनहेंस करेगा। बनाहल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो एक इंसान की डिसीजन मेकिंग होती है। उसकी क्रिटिकली एनालाइज कर लेता है विद इन सेकेंड्स वो, और उसको एनालाइज करने के बाद इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ एन क्रिटिकल बैरियर दैट पर्सन फेस, उसकी फेस फाइंडिंग है, उसका फियर है, उसका वो क्या इंट्रोवर्ड है, वो एक्सट्रोवर्ड है, इट डजंट रियली मैटर व्हाट काइंड ऑफ एन फियर दैट पर्सन इज एक्चुअली इन, वो उससे निकल आता है। नाउ डिसीजन मेकिंग को बड़ी प्रिसाइज होती है उसकी, और उसके बाद उसको ये वाली हर्डल नहीं होती। हमें सबसे पहले वाज कहा है वो कैसे गलत हो सकता है भाई। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफर कर सकते हैं, बहुत सारे कल्चरल इफेक्ट्स एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। आप तक जो एक इमेज और इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है उसका द पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो टोटल डिफरेंट। मैं इस पॉइंट को एलेबोरेट यहाँ करना चाहूंगा कि अगर हम एक ब्लैंक पेपर हमारे पास है, उस ब्लैंक पेपर के ऊपर हम स्पॉट करते हैं किसको, एक लेड पेन से। अगर हम लेड पेन से उसको स्पॉट करते हैं तो बिलीव मी हार्डली वी कैन, लगाने के बाद अगर पेपर को हिलाएं और दोबारा इट्स वेरी हार्ड फॉर अस कि हम उस स्पॉट को ऑब्जर्व कर पाए। बड़े गौर और उसके साथ एक आइडिया लगाते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ना पेंसिल से मार्क किया था, पेंसिल को चेंज करके आप उसकी जगह बॉल पेन रख लें, बॉल पेन का मार्क लगाएंगे कि थोड़ी सी हसल के बाद वी कैन इजीली सी कि ये एंड कहाँ पे है। और अगर वही पॉइंट हम मार्कर से लगा दें, बोर्ड मार्कर से या किसी भी दूसरे मार्कर्स को यूज करते हुए हम लगा दें, तो हम इजीली उसको देख सकते हैं। अब देखें एंगल, अब जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बदलता है। इसीलिए प्रिसेशन जो है वो इमोशंस को अंडरस्टैंड करके आती है। until unless you don't walk into the shoes of someone else you cannot understand the pain the person is actually feeling it। उसको आप पेपर को जैसे जैसे घुमाते जाएंगे आपको वो सर्कल आपके एंगल पे एक जैसा ही नजर आएगा, लेकिन अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वो जहां से आप पहले उसको देख रहे थे, जैसे आपने उसको टुवर्ड्स राइट साइड मूव किया तो हो सकता है कि 30 डिग्री के एंगल का डिफरेंस आ गया। तो 360 हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी अगर होता है तो उसके 360 एंगल्स होते हैं जो हमारे उस एक सिनेरियो पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं और कुछ लोग उसको बुरा समझते हैं। अगर आप 360 को भी डिवाइड करें तो 180 हमारे पास पॉजिटिव है और 180 हमारे पास नेगेटिव है। अब जिस इंसान की एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव होंगी वो कभी भी आपकी बात को नेगेटिव अंडरस्टैंड नहीं करेगा, और जिसकी एट्रीब्यूट नेगेटिव होंगी वो कभी भी पॉजिटिव उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसीलिए हमें उस बैलेंस को लाना बहुत जरूरी है जो हार्ट एंड ब्रेन का है। मीन टू से इन आवर ब्रेन अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो ये बात क्लियर है, समझिएगा, ना कोई आपको जिंदगी में बेवकूफ बना सकता है क्योंकि यू आर यूजिंग योर ब्रेन, और ना कोई आपका मिस यूज कर सकता है कि आपको ये कहना पड़े खुद को। अर्लियर समबडी सेड इट कि इमोशनली फूल, इमोशनल फूल। क्योंकि जब भी हम फैसला लेते हैं या तो हम दिल की सुनते हैं या हम दिमाग की सुनते हैं। हमें पता भी होता है कि अगर दिमाग की सुनेंगे तो ये नुकसान होगा, लेकिन हम उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपना नुकसान उसके मीनवाइल कर लेते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स इन आवर रियल लाइफ। अगर मैं उन एग्जांपल में जाऊंगा तो दैट टुक लॉट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन वी हैव इट तो अगर मौका मिला तो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस विद इन प्योर लाइफ एग्जांपल्स कि लाइफ चेंज कैसे होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोड करता हूँ, हैविंग दैट रियली शॉर्ट ऑफ द टाइम। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, जब वो बाबा जी रिटायर हुए आप सबने उनकी स्टोरी सुनी हुई है, इसीलिए मैं उसी स्टोरी को जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर नहीं सुनी आई विल एक्सप्लेन कि जब वो 60 में जाके रिटायर हुआ तो उसके पास जितनी भी अमाउंट थी उसने कहा ये अमाउंट तो मेरे अगले साल तक भी नहीं चलेगी और खत्म हो जाएगी, तो व्हाट शुड आई डू। अब हर किसी को पता है KFC KFC KFC, बट लोगों को नहीं पता कंटाकी जो स्टेट है हर पहले घर के अंदर एक फ्राइड चिकन की रेसिपी है। हर घर की अपनी रेसिपी है
जहाँ से वो कंटकी वाले बाबा जी थे इन आर वर्ड। तो फिर उनकी रेसिपी जो है वो पूरी दुनिया में 1/3 ऑफ द प्लेनेट KFC जो है वो खिला रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वो लेट्स अज्यूम अगर 100 घर भी हो तो 100 रेसिपीज हैं, तो सिर्फ एक ही क्यों चली, बाकी 99 क्यों नहीं चली? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ब्रेव डिसीजन, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं जिंदगी से बहुत ज्यादा, लेकिन हम वो चाहते हैं शॉर्टकट से। याद ये रखिएगा, लाइफ में शॉर्टकट से मिल सब कुछ जाता है, लेकिन जिस स्पीड से मिलता है, जब वो कट टर्न लेता है और स्टीप बाउंस लेता है, तो स्टीप बाउंस के ऊपर आप ऐसा स्लिप होते हो कि आपने जहां से स्टार्ट किया होता है, सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया होता है, तो जब आप फॉल करते हो तो आप माइनस में कहीं चले जाते हो। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क, प्योर मेहनत के साथ काम कर रहे हो, तो आप एक मुकाम तक पहुंचे हो एंड स्टीप आ गया। पहली बात है, यू हैव दैट एन आइडिया बिकॉज योर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ एट दैट टाइम फॉर द स्टीप टाइम्स। तो वो आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ कर रहा होता है। एट दैट टाइम यू आर एक्चुअली नरिशिंग योर ब्रेन। सबसे यहाँ पे एक मनाहिल, जो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम है हम लोगों की, हम लोग एक लाइफ साइकिल में चलते हैं। रियलिटी। हम एक लाइफ साइकिल में चलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते चीजों को। लाइफ साइकिल क्या है? अगर एक स्टूडेंट की एग्जांपल लें, वो हॉस्टलाइज है, वो जाएगा रात, अब हम मॉर्निंग की सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं, तो आके 24 आवर का साइकिल उसका डिस्क्राइब हो जाएगा। अब उसको पता है कि उसको अर्ली मॉर्निंग उठना है, लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे जो है वो सोएगा। जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट प्लीज। लाइक अब उसके साइकिल पे आते हैं। अब देखिए बैलेंस कहाँ कहाँ है, ये आप लोगों ने अब रियलाइज करना है। एक स्टूडेंट की प्योर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब वो मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे 8:30 बजे सुबह क्लास है। मैं जब सोने की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने बेड पे हूँ, एग्जैक्टली गोइंग टू स्लीप एट 9 o'clock और 10 o'clock और 11 o'clock, वट मे बी एट 1 o'clock। लेकिन मुझे सोते 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 सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए। मुझे पता है कि सुबह मेरी क्लास है। क्या मैंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया वक्त से पहले? उसको क्लास है, मेरी सुबह 8 बजे क्लास है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ क्लास के लिए, बट फिर भी आई डू माई स्टफ, भागम भाग सीधा क्लास में। अब लाजमी तो नहीं है कि आई जस्ट जो स्टूडेंट है वो उस चीज से दूर भी हो सकता है, ट्रेवल करता है। अब वो बाइक जो है वो किसी और ने अगर इस्तेमाल की हुई है, उसको पता नहीं है बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, वो वॉक करेगा, फिर उसकी उसी मीन असना के अंदर उसकी असाइनमेंट भी ड्रॉप हो जाती है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। भागम भाग क्लास में पहुंचता है, 8 से 8:30 हो जाते हैं। वहां से अब देखिए, अब सारा एक डिस्टर्ब रूटीन शुरू होगी। अब जब वो क्लास में बैठता है तो बिलीव मी, वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होता है, मेंटली उसका हाफ से ज्यादा जो ब्रेन है वो डेड होता है, क्योंकि वो उस रेस्ट वाले मोड पे ही नहीं गया होता। इसी तरह वो अपने रूटीन में काम उसके लेट होते जाते हैं। Dear, what we do when we are socializing, we forget our prime responsibilities. आप जब तक, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, आप जब तक अपनी, हम इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते अनटिल हमारी जो प्राइम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फाइंड नहीं करते। यहाँ अभी किसी ने कहा लव इज एन इमोशन। लुक, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लव इज रियली रियली अ ग्रेट थिंग। देखिए, अगर एक छोटी सी एग्जांपल है, आप हम सब जब पैदा हुए तो सबसे ज्यादा हमें क्या किया जाता है? लव, डेफिनेटली प्यार। प्यार। कभी दादी के रूप में, माँ के रूप में, बाप के रूप में, बहन के रूप में, भाइयों के रूप में, चाची ताई यस। फूफी। किसी को हम पसंद नहीं भी है ना, तो वो भी हमें ओनली गिव लव। तो फिर लव जो है हम फ्रॉम अ चाइल्डहुड वी आर गेटिंग, but unfortunately you know, when we are in our adult age, so the circumstances change, the culture change, we forgot about the things, and abundantly we've been stopped to doing and taking care of the love.
You know why? Because we thought this isn't a negative Yes, sir. vibe we have in it. Look, Exactly. heart is a really, really powerful emotion. You need to understand, you need to recognize. All you need to do, you need to put a balance. All you need to do, you need to put a balance. Excess, Safdar Sahab, I think he's here or not. Excess is really harm. आप if you create the balance, believe me, ना आपका culture hit होगा, ना आपके family norms hit होंगे, ना आप disrespect होगी, ना इस ना ना open class, ना हमारे गुनाह सगीरा होंगे ना कबीरा होंगे if we create the balance. That's the balance, we created it, and that's how we need to that's how we recognize our emotion. So yes, love Definitely. isn't an emotion. All we need to do it, we need to develop the right understanding, right frame of mind, and especially until unless, look, मैं आपको एक बात बताता हूँ, guys. Until unless, I know Manahil is bit in hurry, you know. Manahil, No, no, just sir, you take your last time. words. Until unless we stop pinpointing others, believe me, people will stop pinpointing us. Believe me on that. Yes, sir, definitely. जब तक हम लोगों को देखें, I have a strong belief. You know what? Do your best and leave the rest on God. Being a Muslim, I have a strong belief on that, and nothing can change it. It doesn't matter what kind of an tornado hit me. I tell you, if you as a person have a strong belief, जब आपको अल्लाह पे भरोसा है, that's all you need to have it. और बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा इफ यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइफ वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर लाइफ. बीइंग इन अ मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग हैविंग अ लाइफ इन द इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान. बिल्कुल. लाजमी नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप आर्मी में जाए और मुल्क की हिफाजत करें. आप उस पे भी अगर अपनी हुक्मरानी जमा लें, बिलीव मी, नथिंग कैन हार्म यू. नथिंग कैन हार्म यू. आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग बादशाह हैं, बादशाह, यू नो. क्योंकि जो बादशाह होता है ना, बादशाह, वो कुछ भी कहता है तो वो हर बंदे के लिए एक हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, और वो करता है. जब आप दिल के बादशाह बादशाह बनते हैं तो आप कहते हैं कि दैट्स हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ. डू इट, बट क्रिएट अ बैलेंस. And that balance you only can create understanding the emotions, and the emotion you can only understand by recognize yourself, by recognize your relations. And that's only possible when you have a goal in your life, and that goal is only possible when you have a focus, and the focus is only possible when something you really wanted from your life. So that's how you deal with understanding and recognizing your emotion. I think I managed the time in Ahil. Yes, sir, definitely. आपने बहुत. Hello. Yes, sir, I'm listening. बहुत अच्छा Hello. आपने जो. Am I audible? Hello. मनाल जरा स्पीक लाउडली, सर को आवाज क्लियर आ जाए. सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, it's somehow, you know, नहीं, आई थिंक ये मेरी साइड पे कभी कभी जो है ना, ये बबल करता है जो इंटरनेट है ना, तो ये उसकी Yes, sir. बबलिंग की वजह से. जस्ट स्पेयर अ मोमेंट, आई जस्ट नीड टू चेंज द प्लेस ऑफ द डिवाइस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. Okay, sir, no problem. आई थिंक सर ने हमें जो है. यस मनाहल, गो अहेड. ओके सर. सर, आपने जो है वो हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट आपने हमें जो पॉइंट्स बताए हैं कि बाय बैलेंसिंग हम हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलेंगे तो हर चीज़ जो है वो बेटर हो सकती है. क्योंकि सर अब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, अब हर इंसान अब इतना भी बच्चा नहीं होता क्योंकि जिसको पता ही ना हो कि मैंने रिएक्ट कैसे करना है. सो जस्ट वी नीड हैव टू बैलेंस
everything, so we can manage everything. Okay sir, third मेरा आपसे question ये है कि how we improve our personality, because in socially and professionally it's really matters, and as we know that all students have a stuff like that, how to improve our personality regarding to our profession. So आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे पहले पर्सनालिटी की तरफ हम लोग कूच करें, बैलेंस, लाइक हम अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस कैसे ला सकते हैं, यू नो, आपको पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, हमें पता होने के बावजूद वी आर डूइंग द रॉन्ग एंड वी आर नॉट डूइंग द राइट, तो दैट्स मीन यू आर डिसबैलेंसिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अभी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आया था कि हाउ वी कैन गेट द बैलेंस, आई थिंक इस अनिका, that's the way, this is the only key, this is the only key you have it to create that balance. So doing the right and not doing the right thing, by knowing them, this is the disbalancing. Now जब हम डिसबैलेंस हो जाएंगे, इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सोशल अवेयरनेस नहीं है, हमारी जो है वो पर्सनल अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के साथ, हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ के अंदर मैं पब्लिक स्पीक नहीं कर सकता, हाँ, व्हाट कैन आई डू? अब पहला एक ये फियर आ गया, फियर फैक्टर आ गया, मैं बोल नहीं सकता। अब बोल नहीं सकता, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे बिल गेट्स के बहुत फेमस कोट है ये, यू बॉर्न पुअर नॉट योर प्रॉब्लम, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर प्रॉब्लम, यू नो। लेकिन हमारे लोगों ने उसको बहुत सारे ह्यूमरस और फनी वे में चेंज कर दिया, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट बहुत सारे चेंज किया, बस उससे सीखा कुछ नहीं। आप ही इज एवरीबॉडी नो ही इज अ ड्रॉप आउट, लेकिन उसने किया क्या? मेहनत, उसमें स्किल था, उस स्किल सेट को उसने यूटिलाइज किया। जब उसने स्किल सेट के को मेहनत के साथ यूटिलाइज किया, थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिल लगा के काम किया, और आज देखें बिल गेट्स कहाँ पे। आप किसी भी मार्क ज़ुकरबर्ग की जो फेसबुक का ओनर है उसकी अगर एग्जांपल लें, उससे भी अगर, तो कहाँ थे, क्या थे, कैसे बना और क्या से क्या हो गया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पर्सनैलिटी में जहाँ जहाँ फ्लो है हम उस पर काम करना ही नहीं चाहते। गाइस, एक बहुत ही फेमस कोट है, आई रियली पर्सनली लाइक दैट कोट, आई पर्सनली लाइक दैट कोट, कि बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आई पर्सनली लव दिस कोट, be yourself, the world will adjust. But this is the thing, only when you are an entrepreneur, when you are in your own world, like you are not socializing with the people, inside your heart. That's what the example suited. Everybody loves it. But once you talk about fit that example with your classroom, it doesn't. Fit your university, doesn't. Fit your corporate world, your professional life, where after the degrees you are going to get, you're going to put yourself and you performing as the demand of an employer. And these all kind of necessary. In fact, I talk about कि वालिदैन के साथ भी अगर आपको रहना है तो that example, be yourself and the world will adjust, is gonna be really hard. It's gonna be really, really hard, you know. So you need to be a change agent. Yes, Safdar Sahab, you know, until unless you don't accept the things happening with you and you need to change accordingly, you cannot build your personality. Look, it doesn't really matter what you wore. आपने बड़ा आउट क्लास जो है वो 3 पीस पहना हुआ है, लेकिन उसके अंदर फटी हुई बुनियान में एक छोटा सा सुराख है, तो वो भी आपको डिस्टर्ब करता है अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे।
और अगर आप सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर ये कह दें कि अच्छा कौन सा किसी को नजर आ रहा है, तो बिलीव मी यू विल गेट एन कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। इस बात को आई विल से कि आप जब किसी चीज को सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उस इंसान को ढूंढें जिसकी वो सबसे बेस्ट स्पेशलिटी है। अगर हमको दी बेस्ट नहीं मिलता तो सेकंड बेस्ट, अगर हमको वो भी नहीं मिलता, वर्ल्ड में नहीं मिलता, अपनी सराउंडिंग में नहीं मिलता, तो हमारे इर्द गिर्द घर में, पेरेंट्स में, उस्ताजा में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी एक उस बंदे को देखें कि वो कैसे जो है, लेट्स सपोज अगर कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी बनना चाहता है तो वो देखता है कि लोगों में चार्मिंग पर्सनैलिटी की कुछ कीज होती है। वो बहुत एक्स्ट्रोवर्ड होता है, बड़ा टॉकेटिव होता है, बड़ा फ्रेंडली होता है। क्या आप में वो चीज़ें हैं? नहीं है तो आप वो कैसे अडॉप्ट करेंगे? उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लें आप। फॉर अ टाइम बिंग, मेरी बात को याद रखिएगा, आई रिपीट माई सेल्फ, फॉर द टाइम बिंग आप उसका कॉपी करें, मतलब उसको कहते हैं मुखौटा पहन लेना। उसके कवर में उसके कवर के अंदर स्टार्ट लिविंग एंड स्टार्ट लर्निंग, जिसको कहते हैं कि जब तक हम किसी के जूते में चलते नहीं, हमें नहीं पता चलता कि उस बंदे की जिंदगी कैसी चल रही है। वंस यू डू इट, अब आपने उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी चीजें अडॉप्ट कर ली। अब उन चीजों को अपने अकॉर्डिंगली अपने जो है अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग एक्सेप्टेंस, आप जो है उसको चलाएं। जैसे कि एक रफली एक एग्जांपल अगर दें तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, और क्रिकेट की कॉस्ट्यूम पहन के कोई स्विमिंग नहीं कर सकता। इसी तरह बेसबॉल की किट पहन के आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, और फुटबॉल की किट पहन के आप हॉकी नहीं खेल सकते। यू नो व्हाट, the kids do have a certain way of movements controlling your shoes। मतलब अगर हॉकी के शूज हैं तो उनकी जो है वो कारपेट के ऊपर स्किट करने की और ग्रिप करने की जो स्ट्रेंथ है वो और है। आप अगर फुटबॉल के शूज की बात करें तो वो वहां पे स्किट कर जाएंगे, गिव यू अ स्वेयर इंजरी। इसी तरह छोटी छोटी बातें आपकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स बनाती हैं। आपकी पर्सनैलिटी की सबसे जो मेन की थिंग, staying positive is one of the hardest thing in your life to do it। कि आप keep bouncing, people keep ditching you know। अगर बाबा बुल्ले शाह, एक दफा ये मैंने आई हर्ड दैट स्टोरी, आई लाइक टू शेयर विद यू गाइस। तो उन्होंने जो था स्कॉर्पियो, उसको वो डूब रहा था तो उसको अपने जो है वो हाथ पे उठा लिया। तो जैसे ही वो स्कॉर्पियो पानी से बाहर आता है ना, वो डंग मार देता है आपको। तो जैसे ही डंग लगता है ना, तो आपको दर्द होती है, आपके हाथ से छूट जाता है और वो वापस पानी में गिर के उसी तरह वो हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। इनको फिर एहसास होता है कि ये मर जाएगा, उसको फिर उठाते हैं। रैपिडली जब ये काम होता है तो जो साथ इन बंदा बैठा होता है वो कहता है आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो आपको डंग पे डंग मार रहा है, आपको जहर दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप उसे बार बार उठा रहे हैं। तो क्या कमाल के अल्फाज दे थे जो बाबा बुल्ले शाह ने कहे, सीरियसली, कि ये उसका ज़र्फ है कि वो मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा ज़र्फ नहीं बर्दाश्त करता कि ये तकलीफ में रहे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एटीट्यूड कभी भी बनाया नहीं। हेलो, Yes, sir. Hello. हेलो, Yes, sir. You are audible. हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है हमें। ऑलराइट, वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट का वो सिग्नल आया था, आई थॉट राइट। अब ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। देखें, हर इंसान के वेरी करता है कि हम कहते हैं कि हम एक लिमिट तक, एक टाइम के बाद वी कैन नॉट बियर एनीथिंग। लुक, कंफर्ट जोन में रहते रहोगे तो यू कैन नॉट बियर एनीथिंग। अगर उसी
कुएं के पैंदे के मेंढक बने रहोगे, यू कैन बियर नथिंग. You need to explore the world, and to exploring the world you need to get out of your comfort zone. To get out of your comfort zone you learn so much that will change in your attitude, and that change in an attitude big time have a serious kind of a contribution, you know, in what, in your personality. अब अगर हम पर्सनालिटी की प्रिसाइजली बात करें कि मतलब अगर हमारी पर्सनालिटी है, हम चाहते हैं कि हम उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक एलिमेंट को कर लें, कुछ न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, द ओनली वन थिंग, ब्रिंग द पॉजिटिविटी. डजंट मैटर द पर्सन. हमें क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा पता प्रॉब्लम क्या है बच्चों? सॉरी, कॉल्ड इट मे बी, don't mind guys, huh? It's just an habitual just came out of the mouth. You know, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि whenever something happened, हमारी सराउंडिंग के लोग हमें ये बताते हैं कि you know what, तेरे साथ ये किया है, फलाने किया है, तुझे पता चल गया, उसके नाम की पर्ची काटो और अपनी जेब में रख लो. What's that mean? हमारी सराउंडिंग में हमारे सीनियर, हमारे जानने वाले, हमें जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करें, वो हमें ये सिखा रहे हैं. अब वो पर्ची काट के रखने का मतलब क्या होता है? अब आप उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप नहीं होता. नुकसान अल्टीमेटली हम अपना खुद कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं. तो बहुत सारी जो है वो, आप इसके ऊपर आपको कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा. मतलब हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव, मैंने पहले कहा कि सबसे मुश्किल तरीन काम है दुनिया का ये, बियर करना और पॉजिटिव रहना. बट स्लोली इसके एक इस तरह से एग्जांपल है, वो हम जो बॉयज़ लोग हैं ना, जब ये बाइक चलानी सीखते हैं ना, तो इनको बड़ा प्यार से हर बंदा जो है ना, जब भी सीखा है, आई एम 100% श्योर, एक तो अर्ली एज में सीख गए होंगे, और जिसने बिठाया होगा वो अकेले बिठाया होगा, भाई साहब ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, रेस दोगे तो क्लच यकदम नहीं छोड़ना, गिर जाओगे, बाइक उठ जाएगी, स्लिप हो जाएगा. एंड आई गारंटीड यू, मजाल है किसी ने ये बात समझी हो. वैसे ही होता है, रेस तेज दी जाती है, क्लच यकदम छूट जाता है और कलाबाजी लग जाती है, गोडे पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, टांग छीली जाती है, कंधा लगता है. लेकिन वो चोट जिंदगी का सबक दे जाती है कि बेटा जी, रेस जब दोगे तो क्लच को कितना आहिस्ता से छोड़ना है कि बाइक जो है वो मूवमेंट में आ जाएगी. ये वो सबक होता है कि जो बगैर गिरे दुनिया के कोई इंसान आपको नहीं समझा सकता. नाउ अब हमारा एक कंफर्ट जोन बन गया कि हम स्लोली बाइक चलाना स्टार्ट हो गए. कुछ लोग होते हैं वो 120 के ऊपर जाएं तो वो बाइक, उनको लगता है कि वो बाइक चला रही है. क्यों उनको लगता है? और एक बंदा मेरे जैसा खड़ा होगा तो वो वैसे ही डर जाएगा, अल्लाह इसको खैर खैरियत से इसकी मंजिल पे पहुंचाए, लेकिन वो बड़े आराम से जा रहा होता है. मेरे जैसा बंदा डर जाता है क्योंकि मैंने तो जाने 40-50 पे होता है. तो मेरे लिए कंफर्ट जोन वो 40-50 है, उसके लिए वो कंफर्ट जोन 100-120 वाला जो जोन है वो है. तो ये जैसे जैसे आप चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएंगे, आपका कंफर्ट जोन चेंज होता जाएगा. हार्डशिप्स आपको कभी भी जिंदगी में हार्ड नहीं लगेंगी. ये सिर्फ वन टाइम है, वन टाइम. और बिलीव मी, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक है, मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आप लोग करें. मैं यूजुअली अपनी क्लास में भी, हमारे पर्सनैलिटी के अंदर हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें पता भी है गलत बात हो गई, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते. यू नो व्हाट, सिंपल, कुछ नहीं करो, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करो, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज वाला पोर्शन है ना, उस पोर्शन पे जो है वो क्लिक करो और टाइपिंग स्टार्ट कर दो. दे धनाधन डैश 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 धनाधन टाइप करते जाओ. यू नो, जब दिल भर के भड़ास निकाल चुके हो, टाइपिंग पूरी कर ली, पूरी भड़ास निकाल ली, you know what you need to do it, select all, delete. The moment you delete, आप बिलीव करोगे, ऐसा लगेगा आपको कि आपके सर के ऊपर 2 मन का वजन था जो अचानक से रुई हो गया, अचानक से रुई हो गया. So do that technique. This is the
only one technique can save you from a heaviest stress. Believe me, the stress can rip you apart. The stress can ruin your future. The stress can cannot made you to be able to do anything in your life great. The stress can never let you to decide your goal. You can break out that stress. Please इस एक चीज को करें, उसको भड़ास निकालें. सैंडल तो आपने पहले ही नहीं डाला होता, उस एक चीज को डालें और डालने के बाद उसके ऊपर उसको डेल कर दें. आप बिलीव मी, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे. और एक चीज, कभी भी किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आई यूजली सेड इट टू माय स्टूडेंट्स एंड आई एम सेइंग टू यू गाइस एज वेल, उसको एक अपॉर्चुनिटी जरूर दें, उसको एक दफा पढ़ के भेजें. जब आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगा. जब आप दूसरी दफा पढ़ेंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा. आप कुछ और वर्ड उसमें से चेंज कर देंगे. आपके से कभी भी आपके लव वंस भी हर्ट नहीं होंगे. To understanding, recognize your emotion, to have a balance in your life, to understand the attributes, the nature, the phenomena, the culture, the norms of the society and a family, and to maintain yourself. Believe me, you become an outstanding. Your attitude will be over the hill. Believe me, you will be awesome. आज के दौर में जो जॉब्स देते हैं ना, हमें लोग जॉब्स देते हैं, वो ये नहीं देखते आप कैसे हैं, वो ये भी नहीं देखते आपका नॉलेज कैसा है. वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं कि शायद आपका CGPA उनके लेवल के ऊपर नहीं है, राइट. लेकिन अगर वो नहीं इग्नोर करते तो वो है एटीट्यूड. दैट्स द वन थिंग दैट्स नेवर इग्नोर्ड. और ये वर्बल से ज़्यादा जो नॉन वर्बल है वो हमारी पर्सनैलिटी को हिट करता है. Are you getting my point? कि उतना वर्बल हेलो, उतना वर्बल हमारी पर्सनालिटी को जो है वो हिट नहीं करता जितना नॉन वर्बल हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको हिट करती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है. इसीलिए पर्सनैलिटी बनाने से पहले रिकग्नाइज करें कहाँ पे गुस्सा आता है, कहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, कहाँ पे जो है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. फिर अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी ऐसे को फॉलो करना चाहिए जो दी बेस्ट है टू कंट्रोलिंग दोज. और हाँ, एक चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, कुछ भी ऐसा जिंदगी में मत कीजिएगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे. अगर आपको नहीं पता तो वो एक अलग बात है. आपको पता है और पता होने के बावजूद आप वो काम कर देते हैं, प्लीज वो नहीं करें. बीइंग एन ए मुस्लिम, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें. आपसे नहीं पढ़ा जाता, एक जो आयत है उसको जरूर पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी जो है वो तफसीर पढ़ें. आपको जिंदगी गुजारने का और जिंदगी का जो एक नस्बुल लैन है, यू विल फाइंड इट. आपकी पर्सनैलिटी का बैलेंस भी आ जाएगा, व्हाट इज एक्चुअली इमोशंस आर, और फिर उन इमोशंस को यूज करने को जो इंटेलिजेंस कहते हैं. 1400 years ago we had it all been told. उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग हो, उसके बाद आपका पर्सनल वेल बीइंग हो, आपका जो है आपका स्ट्रेस है, ऑक्यूपेशनल है, स्टूडेंट है, सोशल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, आपकी एज एन अ टीम मेंबर और टीम प्लेयर और अ टीम लीडर और लीडरशिप के रोल में है, कहीं पे भी आप लैग बिहाइंड नहीं करेंगे. आप इमोशनली भी स्ट्रेंथन होंगे, आप किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे, और लोग भी आप लोगों के बनाए हुए जाल और उनके नुकसानात से भी बच सकते हैं. और यही सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड को बिल्ड करती हैं. द मोर यू बियर, द मोर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड यू विल हैव इट. Thank you very much. If anybody want to ask any question. जी जी सर, मैं उसी तरफ आ रही हूँ. Exactly, well said, sir. You really explained very well. And Hello. am I audible? जी. And you explained each and every scenario with a lot of Thank you. example that will be helpful for us in our personal Yes, you are. as well as professional life. Thank you so I much said thank you. for explaining very well. एंड नेक्स्ट अब हमारा जो है वो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन एंड आंसर्स का. तो गाइस, आपका जो भी क्वेश्चन होगा
आप अपना जो है वो मुझे चैट बॉक्स पे दे दें, वो मैं सर को जो है वो पढ़ के सुना दूंगी, तो आपको आपके हेलो। आंसर मिलेंगे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। But one by one, please. But यस सर। one by one, please. यस सर, ये लोग जो है वो चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस करेंगे और वो जो रीड करके मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्या इमोशंस को किल करना सक्सेस है? आप मुझे नहीं 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 मैंने, अगर आपने मेरी पूरी कन्वर्सेशन सुनी है या कोई पार्ट हुआ है, तो मैंने कहीं भी किसी को नहीं कहा कि यू नीड टू जस्ट बरी डाउन योर फीलिंग्स। नो, उन फीलिंग्स को बरी नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड करके उनके अकॉर्डिंगली लाइफ बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मेरे घर में जो है मुझे टीवी देखना अलाउ नहीं है, ठीक है। अब बीइंग एन स्टूडेंट, वो दौर एक था कि जब बच्चों को टीवी से मना करते थे। आज का दौर और हो गया, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे बहुत सारे कुछ ही करते हैं। तो हम, अगर पेरेंट्स भी हमें रोकते हैं ना कि नहीं जी आपने टीवी नहीं देखना, तो हम प्रिसाइजली उनके सामने अपना मुद्दा रख सकते हैं। देखिए, हम, अगर आपको लगता है कि हम कोई हैंकी पैंकी करेंगे या इधर जाएंगे, चल टीवी को छोड़े, इंटरनेट की बात करते हैं। आपका इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, नहीं जी आपके पेपर आ गए, नेट ऑफ, ठीक है। तो हम उनसे जो है बड़े डिलिबरेटली जो है अपने आप को कोसने की बजाय या उनको कोसे देने की बजाय हम कहते हैं कि ठीक है ये चीजें हमें चाहिए, वो अलाउ कर दे, बाकी आईपी पे ऑफ कर दे, आप भी खुश हम भी खुश। यू नो व्हाट आई मीन। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो हमें इससे रिलेटेड ये चीजें चाहिए, तो हमें इतनी देर के लिए अलाउ कर दें, उसमें हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो एक टाइम स्पैन के लिए वो बंद कर रहे हैं ना, वो कौन सा परमानेंटली कह रहे हैं कि बस भाई परमानेंट बंद, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, डिजिटल लर्निंग है, लर्निंग बहुत फास्ट हो गया। यू गाइस आर वेरी लकी कि लर्निंग इतनी फास्ट हो गया। हमने तो दिया सलाई के नीचे किताबें रख रख के पढ़ा है, और जब सुबह को, इसीलिए इतने जो कम्प्लेक्शन है वो भी इतना डार्क हो गया कि वो दिया सलाई का जो रंग था ना वो सही तरह से साबुन से धुला नहीं। तो यू गाइस आर वेरी लकी, एसी है, लाइट है, यूपीएस है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन अगर किसी के पास एसी, लाइट या यूपीएस नहीं भी है, बट स्टिल यू आर इन अ वेरी गुड टाइम, बिलीव मी। तो चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं, वो पुराने दौर में एड्रेस भी नहीं कर सकते। इस दौर में माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली हैं, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इस तरीके से हम किल नहीं करना, कभी भी इमोशंस को किल नहीं करते। हाँ, बैलेंस ज़रूर लेके आते हैं कि बैलेंस होना चाहिए चीज़ों के बारे में। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे हम मैट्रिक करके आए, पढ़ के आए एफएससी की, तो माँ बाप हमें कोई ना कोई लालच दे देते थे। हाँ, वो एक जगह पे कुछ गलत लर्निंग में हमारी में आ गया। देखिए, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग ए स्टूडेंट, पढ़ना। हम मैट्रिक है, एफएससी है, हमारा कोर्स है, हमारे सेमेस्टर्स हैं, हमें जीपीए अच्छा लेके आना। प्लीज रट्टा नहीं लगाएं। रट्टा लगाने से, किसी की कॉपी करने से, नकल करने से आपका 3.7 आ जाएगा। आप बिलीव मी, रटा ना लगाएं, आप समझें चीज़ों को, नकल ना करें। आपका जीपीएस ज़्यादा से ज़्यादा भी कम हुआ ना तो 0.5 होगा, 3.2 फिर भी आएगा, 3.2 ना आए 3 फिर भी आएगा, बिलीव मी। अपने स्किल सेट को एनहांस करें, कॉपी करना छोड़ें, खुद काम करें। क्योंकि जो काम आप खुद करोगे ना, अगले बंदे को कॉपी कर रहे हो, उसका भला हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो बैलेंस लेके आए, किल नहीं करना इमोशंस को, ये कतई नहीं मैं कभी कहूंगा। उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, और एक बीच का, एक जो बार्गेनिंग से जो एक बीच का रास्ता है जिसपे दोनों खुश हो जाए, वो डेवलप कर लें। किल नहीं करना, क्योंकि इस तरह का किल करना शुरू हुए तो फिर एक हड्डियों का ढांचा होगा, उसमें एक रूह भी होगी, उसके ऊपर कोई स्किन भी होगी, और लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि उसने जाना कहाँ का और वो जा कहाँ को रहा है, और उसकी चाह चाह क्या रहा है और पा क्या रहा है, उसका गोल क्या है, क्योंकि उसको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं। तो किल नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली डेवलप सर। करके उसका सेकंड बीच क्वेश्चन का हमारे रास्ता, पास ये बैलेंस है क्रिएट कि करना हम चाहिए। सेल्फ फियर को, एग्जैक्टली सर हमारे पास मनाहिल सेकंड क्या कह रहे हैं, सेल्फ क्वेश्चन फियर? ये है कि सेल्फ फियर एंड हाउ कैन बी जो है वो हम किस तरह मनाहिल से अपनी नहीं ओवर थिंकिंग को नहीं छोड़ समझ आया। सकते हैं। सेल्फ फियर एंड ओवर, सर हाउ कैन वी कंट्रोल आवर सेल्फ फियर एंड ओवर थिंकिंग? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। समझ समझ आ गई, आगे आगे समझ आ गई, थैंक यू।
देखें, हमें सेल्फ फियर पता कब होता है? जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं, एक चीज वहां पे है ही नहीं है, आप सोची जा रहे हैं, बिला वजह सोची जा रहे हैं। आप कहते हैं ओफो, मैंने तो ये एप्पल खाना नहीं था, मुझे मना किया था, मैंने तो ये आफ्टरनून में खाना था, ये तो ये। अब अगले बंदे को पता है। अच्छा चले इसको छोड़े, स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन देते देते आपकी गलती होगी, आप रुक जाते हो, वापस आते हो, फिर दोबारा से समझते हो, सामने वाले को पता चल जाता है आपने गलत कहा। बिलीव मी, आपने गलत कहा ये आपको पता है, सामने वाला सम टाइम हो सकता है वो अपने किसी जोन में हो और वो फ्लो आपका निकाल दे, तो रुक के वापस आके अगले को जरूर बताना ये गलती होगी। तो ये चीजें हम कुछ अपने लिए खुद पैदा करते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। जो सेल्फ फियर है ये ओवर थिंकिंग से आता है। ये ना हो सपोज अगर मुझे ये मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए आप 100% दें, पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड यू, और बिलीव मी अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आप फेल नहीं हो सकते, ये मेरा यकीन है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अल्लाह मियाँ ने जब ये ढांचा बनाया, इसमें रूह फूंकी, तो बाय डिफॉल्ट वी आर वेरी क्रिएटिव। बाय डिफॉल्ट वी हैव दैट चिप इंस्टॉल्ड इन आवर ब्रेन जिसको कहते हैं मेंटल पावर। वो एक स्ट्रेंथ है हमारी, क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ है हमारी, बाय डिफॉल्ट ये सब में आया। प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर नहीं दिया हमने उसको। वो एक्सपोजर क्यों नहीं आया? हमने ट्रस्ट नहीं किया। अब ट्रस्ट नहीं किया, किस फैक्टर क्या था? फियर का था। अब वो फियर फैक्टर को दूर करना सबसे बड़ी बात, उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दें। सोचें तो ये कि उसका हल क्या है। मैं आपको यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए एक सोल्यूशन देता हूँ। आप जिस काम को हल कर सकते हैं उसके बारे में जरूर सोचें, उसका जरूर हल निकालें। लेकिन हर वो काम जिसके एंड तक आप चले गए हैं और आगे डेड एंड है, आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी पेन लेना छोड़ दें। एक छोटी सी एग्जांपल से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वहां से ट्रिप हुआ होगा स्विच, उसको ऑन कर दें, आपके घर की लाइट आ जाएगी। अगर वो स्विच ट्रिप भी नहीं है, आपके घर में शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ और लाइट चली गई है, तो आप बाहर देखें कि सबकी गई है या सिर्फ आप ही की लाइट है, आप ही माशाल्लाह हैं या सब भी कुदरतुल्लाह है। तो अगर तो सबकी गई है तो दैट्स मीन वापदा की तरफ से पीछे से गई है। आप अगर घंटे में आधे घंटे में नहीं आती तो आप मैक्सिमम क्या कॉल कर सकते हैं, उससे भी मैक्सिमम ये है कि उनके वहां जाके पूछ सकते हैं इतने घंटे हो गए नहीं आई। अब उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी पेन लेने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट काम है तो उसके ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव बना के रखें। कोई भी आपने काम करना है उसके ऑलवेज ऑल्टरनेटिव जरूर रखें, कम से कम एक ऑल्टरनेटिव हर काम का रखें। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी, आप कभी भी फियर में नहीं जाओगे। स्ट्रेस फियर ये एक ही पटरी के दो चट्टे बट्टे हैं, कभी भी नहीं होगा। और यू यू विल हैव एन वेरी गुड लाइफ। जी मनाहिल, मनाहिल नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, प्लीज। sir. सर क्वेश्चंस जो हैं वो एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो फर्दर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो सर ने जो है वो हमारे सेशन में ऑलरेडी आंसर कर दिया है। और नेक्स्ट जो है वो इट्स अबाउट टू एंड एंड नाउ आई वांट्स टू इंट्रोड्यूस द फाउंडर ऑफ कुंदन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर उबैदुर रहमान पाशा एंड आई इनवाइट यू टू शेयर सम वर्ड्स विद अस। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वालेकुम मच अस्सलाम। कि आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी जो खुशी है उसकी इंतहा मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो सफ़र स्टार्ट किया था वो अपनी कामयाबी की जानिब रवां दवां है। और हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं जिससे वो लड़ कर आता है और वो कुछ बनता है। और सबसे बड़ी बात, उस कामयाब इंसान के पीछे कुछ असातिज़ा और कुछ मेंटोर होते हैं। और खुशी इसी बात की है कि आज मेरी छोटी सी इस ऑर्गेनाइजेशन, हम सब की ऑर्गेनाइजेशन जो आज कुंदन है, उनमें एक ऐसे सर भी मौजूद हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ और उन्होंने हमें पढ़ाया
और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। उन्होंने हमें कम्युनिकेशनल स्किल्स पढ़ाई। उनसे मैंने बेसिकली क्या सीखा, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, इमोशंस को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मुझे लास्ट टाइम याद था। मैं चंद एक बातें सिर्फ आपके साथ करना चाहूँगा, आज मेरा दिल किया तो मैं आपको थोड़ी सी जर्नी सुनाता हूँ। सर ने जो जो बातें की, ये मैं बड़ा गौर और फिक्र के साथ इसको देख भी रहा था और सोच भी रहा था, और इस सब पर मैं पहले क्योंकि वर्क कर चुका, छोटा सा एक कहते हैं ना कि इंटरेस्ट बिल्ड करके काम कर चुका हूँ। और बिलीव में मुझे जो आउटपुट मिला है ना, बिलीव में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और सर हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं, और एक चीज मुझे सर की सबसे अच्छी लगी कि सर ने रटा माना कभी नहीं सिखाया। हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो मार्क्स जो हैं सबकी नॉर्मली, सर ने हमेशा सिखाया बेटा जनरेट करना सीखें, बेटा आप सीखें कि आपने क्या करना है, आप किसी का कॉपीराइट ना करें। ये सारी चीजें सीखी, उस पर अमल किया। हमें सर ने सिखाया वैल्यूज, मिशन, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर अमल करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन पर वर्क करते रहे करते रहे करते रहे, और आज आप सबके सामने। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज फाइनल ये है, जब आप अपने आप के साथ सिंसियर है ना, आप सबसे आगे। मुझे सर की ये 110% बात ठीक लगती है, और इस वजह से आज मैं एक छोटा मोटा पब्लिक स्पीकर हूँ। उसकी वजह ये एक क्लास थी, लास्ट टाइम मैं आखिर में बैठा हुआ था, और सर ने मुझे कहा सर फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशनल स्किल्स थी, इधर उधर शोर शराबा कुछ भी नहीं, सिर्फ साइलेंस थी। और सर कह रहे कुछ बोलो, और एक कुछ तो बोलो। आवाज नहीं आ रही थी किसी की भी। मैं बिल्कुल सामने लास्ट में बैठा हुआ था, और आज से ये तकरीबन 3 सेमेस्टर पहले की बात है। तो सर ने मुझे कहा स्टैंड अप, खड़े हो, बोलो आप भी कुछ, वन बाय वन करके। तो मैं खड़ा हुआ, और मैंने उस वक्त वो एक कोट पढ़ा इंग्लिश का कि इफ योर एक्शन इंस्पायर्ड टू डू मोर, लर्न मोर एंड बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर। सर की चेहरे पर बिलीव में एक खुशी दौड़ उठी, और वो इस तरह के कि बस ये स्पिरिट चाहिए था, दैट्स इट। सर ने तालियां बजवाई। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये खुद एतमादी, ये इंसान को बहुत आगे लेके जाती। सो मेरा आप सबसे यही पैगाम है कि जो कुछ भी बने, जिस फील्ड में हैं, जो कुछ भी करें, अपने आप के साथ सिंसियर हो, अपने वालिदैन के साथ। और अगर जिस दिन आप अपने आप के साथ सिंसियर होंगे, वो कहते हैं ना कि इकबाल के खुद ही में डूब के पा जा सुर आगे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो हम अपने नहीं बनते, हम औरों के बनते, औरों की सुनाई बातों पर अमल करते हैं। तो मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ यही कि आए, हम सबको ज्वाइन करें टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं, उसे करें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उससे लिखें, सर्च करें, ढूंढें, लेकिन कभी उसको जाया मत करने दें। ये मैंने सर से सीखा है। और लास्ट बात यही कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। अल्लाह आप सबको खुश रखे, और थैंक यू सो मच सर, हम सबको एक इतना अच्छा लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर देने का। जज़ाकल्लाह खैर। Okay, it's time to end this session. I'm really thankful to our guest of honor, Sir Wasim, that you gave your precious time to us, and especially thanks to our organization and our founder that they are managing these online sessions for our youth to enhance their qualities in a better way and to serve humanity and this country. Because our emotions need to be as educated as our intellect, it is important to know how to feel, how to respond, and how to let life in so that it can touch you. So, respect others' feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them.
And I think if you are tuned out of your own emotions, you will be poor at reading than in other people. So just look in the mirror, that's your competition. Stay safe, be brave, be passionate. And thank you so much, our Kundan team. And thank you so much, our executive team. And thank you so much, my all participants. कि आपने जो है वो हमें इतने गौर से और इतने अच्छे तरीके से सुना. And hope so कि आपको जो है वो ये सेशन आपके लिए बेनिफिट होगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, guide.